Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to study chapter 8, the solar system. Okay, in this chapter we will study about the heavenly bodies, the heavenly things. Okay, things that are given by nature. During the day we can see the sun shining brightly in the sky. Okay, दिन में क्या होता है, दिन में हम देखते हैं कि सूरज जो होता है वो चमक रहा होता है. ओके, sun. At night the moon and the stars appear in the sky. रात में क्या होता है, क्या क्या आते हैं, the moon and the stars. Okay, so these are known as heavenly bodies. Okay, ये सब क्या होते हैं, heavenly bodies. Heavenly bodies means जो heaven से आए हैं, जिनको भगवान ने बनाया, हमने नहीं बनाया. Okay, things that are God gifted, made by God or created by God, not by human beings. Okay, so these are heavenly bodies. The things that are, okay, let me explain you. The things that are created by God, okay, created by God are called heavenly bodies. Okay, are called heavenly things. ये सब क्या हो गया, heavenly things होगा या heavenly bodies हो गए आपके. Just for explanation, जिसको गॉड ने बनाया, इंसानों ने बनाया. The sun, the moon, the stars and the planets form universe. जो हेवनली बॉडीज हैं, सन हो गए, मून हो गए, स्टार्स हो गए और प्लैनेट्स हो गए, वो सब क्या बनाते हैं, वो सब मिल करके एक यूनिवर्स बनाते हैं. ओके, अबाउट यूनिवर्स यू विल स्टडी लेटर इन लेटर क्लासेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लुक एट द सोलर सिस्टम. ओके, द सन इज एट द सेंटर ऑफ अ फैमिली ऑफ हेवनली बॉडीज. ओके, सन क्या होता है, सन बिल्कुल बीच में होता है. जो हेवनली बॉडीज है उनके बीच में बिल्कुल सन होता है. ओके, बाकी सब चीज़ें आसपास होती है, बट जो सन होता है वो सेंटर में होता है. नोन एज सोलर सिस्टम. ओके, ये हो गया आपका सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम हैज़ द सन एंड 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड इट. सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं. ओके, here you can see in the image of solar system, here is sun. Okay, you can see there are 8 planets and this one is ninth one, Pluto. Okay, this is dwarf planet, this is not the planet, because it is very far from us, very far. That's why it is not considered as considered within planets. Sun, this one is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, if you have in syllabus Pluto, then learn the name of planet Pluto. Otherwise, if it is not included, then just skip it. Okay, it depends, this planet is depends upon your syllabus. Okay, so these are the planets. Okay, the learn the name sequentially. Okay, सबसे पहले आपका मरकरी ही आएगा. ये you cannot learn this randomly, this must be in sequence. Okay, सबसे पहले क्या होता है, सबसे नज़दीक में कौन सा प्लैनेट है, मरकरी, नियरेस्ट प्लैनेट. ओके, ये क्या हुआ, मरकरी क्या हुआ, नियरेस्ट प्लैनेट है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ओके, एंड दिस इज अर्थ वेयर वी live. This is our planet. Okay, in this planet we live, the third one. Okay, this is earth. Okay, and the moon is satellite. Okay, just like moon revolves around the sun, similarly moon revolves around the earth. Okay, जिस तरीके से सब प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से मून जो होता है वो अर्थ का चक्कर लगाता है. ओके, सो this was the image of solar system. Okay, you can take the screenshot of this solar system or you can find it on the internet. Okay, okay, clear. And these are other heavenly bodies like stars, asteroids. Okay, different things, these also comes under solar system. Okay, you will study about this in later classes. This is constellation. Okay, constellation, when
द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। जब भी स्टार्स का ग्रुप जो होता है एक शेप ले लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ओके, just a minute, yeah, these are called asteroids. Okay, this one also comes under solar system. Okay, this is comet, it also comes under solar system. Okay, these are the different things that are heavenly bodies that are not created by man, created by God. Okay, and this is orbit. Okay, ये होता है orbit, इस पर जो होता है ये एक फिक्स्ड पाथ होता है, इस पर जो होता है वो सभी जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। ओके, दिस वन इज ऑर्बिट। सी, दीज आर ऑर्बिट्स। इस तरीके से सब चक्कर लगाते हैं ऐसे सन के चारों ओर। ओके, द प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, द 8 planets. Okay, 8 planets. Could be 9 but depends upon your syllabus. Okay, a fixed path, remember, fixed path in which the planets move around the sun is called orbit. Okay, we have studied about orbit now. ओके, अ फिक्स्ड पाथ, ये सन हो गया आपका, एक फिक्स्ड पाथ होता है, यहाँ पे मर्क्यूरी ही रहेगा इस पाथ पर, आपका वीनस नहीं आ सकता। वीनस कैन नॉट कम ऑन दिस ऑर्बिट, ओनली मर्क्यूरी कैन कम ऑन दिस ऑर्बिट। ओके, वीनस, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ वीनस ओनली, नन अदर प्लैनेट कैन ज्वाइन दिस ऑर्बिट। ओके, कोई भी अदर प्लैनेट इस ऑर्बिट को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ऑर्बिट क्या हुआ, एक फिक्स्ड पाथ हुआ, ठीक है, जिस पर प्लैनेट जो होते हैं मूव करते हैं। See, this is the fixed path. Okay, you can see in the image, this is the fixed path, fixed orbit. Okay, where other planets are, all the planets are revolving. Okay, let me tell you, see this one, the thing that is revolving around the earth. Okay, ये क्या हो गया हमारा, just a minute, okay. ये क्या है हमारा, this is earth. Okay, and this one is orbit. Okay, जिस तरीके से अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, यू कैन सी इन द GIF। ओके, ये था अर्थ का ऑर्बिट। ओके, दिस वाज अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट। ओके, एंड द अर्थ वाज मूविंग, सी द अर्थ इज मूविंग इटसेल्फ, अर्थ भी घूम रहा है आपस में, तो अर्थ अपने ऑर्बिट पर भी घूम रहा है। ओके, अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है और उस एक फिक्स्ड पाथ पर वो सन का भी चक्कर लगा रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। ओके, फिक्स्ड पाथ जो होता है। सी, ओके, Mercury is the smallest planet and Jupiter is the largest planet. Okay, सबसे नजदीक का planet Mercury है। Okay, we can know, we already know it by seeing image. Okay, Mercury क्या है, सबसे छोटा smallest planet है, और Jupiter जो है वो सबसे बड़ा planet है, largest planet. Okay, see, Jupiter is the biggest one. ओके, जुपिटर सबसे बड़ा है, सारे प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट। ओके, planet earth is the only planet, okay, planet earth where we live, okay, is the only planet, only known planet where there is life. अभी तक में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जिंदगी पाई गई, जिस पर लाइफ पाया गया। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, सबसे मैक्सिमम अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है, अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। ओके, मैक्सिमम पार्ट वाटर से कवर्ड है, सो इट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। ओके, इसलिए अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन कुड बी, व्हाई अर्थ द
earth is known as the blue planet. ओके, मीन्स अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं. ओके, और विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट. ओके, ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं. नेक्स्ट इज द सन. ओके, दिस इज सन. दिस इज सन. दिस इज द रियल इमेज ऑफ सन. ये असली सन की इमेज है. आप जो कार्टून्स में देखते हो एक सिंपल सा राउंड सा रहता है, ये रियल इमेज है सन की. ओके, सन इज अ स्टार. सन भी एक स्टार है. रिमेंबर, ओके, सन इज अ स्टार. It is a huge ball of fire. As you saw in the image, you have seen in the image that it is a huge ball of fire. Okay, एक बड़ा गोला है फायर का, आग का. It gives us heat and light. ये क्या करता है, हमें गर्मी देता है और रोशनी देता है, लाइट देता है. ओके, इसलिए तो होता है हमारा दिन. सूरज रहता है तभी तुम कहते हैं कि दिन है. सनसेट हो जाता है तब तुम कहते हैं रात हो गई. बिकॉज जब सनसेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमें हीट मिलना बंद हो जाता है, हमें लाइट मिलना बंद हो जाता है. ओके, इसलिए दिन के मुकाबले रात को हल्की ठंड होती है. टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है रात को दिन के मुकाबले. ओके, वेदर इट इज समर सीजन, वेदर इट इज विंटर सीजन और एनी सीजन. इट इज मच बिगर दैन द अर्थ. सन जो है वो अर्थ से काफी बड़ा है. ओके, इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस. ठीक है, ये छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमसे काफी दूर है, अर्थ प्लैनेट से बहुत दूर है. ओके, द सन इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ. सन जो होता है बहुत ही जरूरी है अर्थ पर, क्योंकि इसी से लाइफ जो है सर्वाइव कर रही है. कैसे? प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो एंड प्रोड्यूस फूड. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर्स दैट प्लांट्स नीड थ्री बेसिक थिंग्स: एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. ओके, तो प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूस फूड खाना बनाने के लिए चाहिए. ठीक है, सन क्या करता है, अपने लीफ में खाना बनता है प्लांट्स का. ठीक है, तो उनको चाहिए सन, इसी से खाना उनका बनता है. अदरवाइज क्या होगा, प्लांट्स जो है वो मर जाएंगे. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड द हीट ऑफ द सन टू स्टे अलाइव. अगर धूप नहीं रहेगी तो क्या होगा, प्लैनेट पर सिर्फ और सिर्फ ठंड हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ठंड हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होगा इससे, जो जो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे, वो पेड़ पौधे हैं वो मर जाएंगे उससे. ठीक है, क्योंकि सन की हीट के कारण ही आप विंटर में भी सर्वाइव कर पाते हो, ठंड के दिन में भी आप धूप में बैठते हो तभी आप आराम से रहते हो, है ना. तो अगर सन ही नहीं रहेगा तो पूरा प्लैनेट जो है वो जम जाएगा, वो पूरा का पूरा जो होगा वो ठंडा हो जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट इज मून. ओके, this is moon. Okay, you can see in the image, this is moon. Okay, the moon appears in the sky during night. रात को हम लोग चांद देखते हैं जिसे हम चंदा मामा कहते हैं, मून कहते हैं. ओके, it makes the night sky bright. रात को क्या होता है, ये रात को क्या करता है, ये रात को रोशनी देता है. आसमान में आप देखोगे तो अलग से चमकती हुई दिखेगी. ओके, तो ये क्या करता है, ब्राइट करता है, चमकीला करता है आसमान को. इट इज मच स्मॉलर दैन द अर्थ. ये क्या है, ये बहुत ही छोटा है. किससे? अर्थ से और मून से, सन से, दोनों से ही ये बहुत ही छोटा है. बट इट इज क्लोजर टू अस दैन द सन. ये क्या है, ये हमसे पास में है, सन के मुकाबले ये हमसे पास में. ओके, आई विल शो यू इन द इमेज. ओके, प्रीवियसली, जस्ट मिनट. सी, द मून इज वेरी स्मॉल. देखिए, अर्थ से इट इज वेरी स्मॉलर दैन द अर्थ एंड द सन, बट इट लुक्स बिग. ये हमेशा हमें सन और मून एक ही साइज के दिखते हैं. क्यों? अर्थ जो, ये मून जो है वो छोटा है, बट इट इज क्लोजर देन अस. ओके, ये हमसे पास में है, और सन जो है हमसे काफी दूर में है, इसलिए भी वो छोटा दिखता है. ओके, अंडरस्टूड? ओके, बट इट इज क्लोजर टू अस देन द सन. सन से ये क्या है, ये हमारे नजदीक है. ओके, दिस इज सन. ओके, okay, this is sun, this is earth. Okay, our earth planet, this is earth, this is sun. Okay, and this is moon.
Okay, just a minute. Let me make the sun bigger. Okay, this is sun. This is earth. Third one, second one is okay, and sun, earth, and this one is moon. Okay, so moon is smaller than earth and sun. बहुत बहुत छोटा है, बट ये अर्थ के पास में है, इसलिए ये ठीक ठाक साइज का दिखता है. ओके, सिमिलर साइज का दिखता है, सन के सिमिलर साइज का दिखता है. मून डजेंट हैव इट्स ओन लाइट. मून का क्या है, अपना कोई रोशनी नहीं है, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है. हम मून लाइट कहते हैं चांद की रोशनी, बट एक्चुअली इट इज नॉट मून लाइट. ओके, मून लाइट इज एक्चुअली सनलाइट. ये क्या है, एक्चुअली में मून लाइट जो है वो सनलाइट है, दैट शाइन्स ऑन द मून. क्या होता है, जो मून पर शाइन करता है. ये सन की शाइन आ रही है. ओके, यहाँ पे सन की शाइन है आपकी मून पर, दैट्स वाई हमें मून जो था चमकता हुआ दिखता है. ओके, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा चमकता हुआ. ठीक है, तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सनलाइट होती है जो रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर आती है. ओके, वी विल सी विद अ क्विक GIF क्विक वीडियो. सी, this is sun, this one is moon, and this one is earth. Okay, sun, let me change the color so that you can see it easily. Okay, I will select the white one. ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको इजीली दिखेगा भी. ओके, this is moon. Okay, and this one is earth. ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है रोशनी. ओके, ये क्या हो गई, ये जो है दिस वन इज सनलाइट, दिस वन इज सनलाइट. ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये सन की रोशनी जो यहाँ मून पर पड़ रही है, और मून की रोशनी के कारण, मून पर जो रोशनी पड़ती है उसके कारण हमें जो होता है मून ब्राइट दिखता है. ओके, चमकता हुआ दिखता है. अदरवाइज मून की अपनी कोई रोशनी नहीं है. फुल, द मून अपीयर्स इन द स्काई. ओके, आई थिंक yes, the moon appears in the sky during night. It makes the night bright. Okay, same thing. The moon keeps changing its shape. Oh, I forgot to change the ink color. That's why I was unable to see it. Where is it? Yes, now. The moon keeps changing the shape through the month. Okay, moon जो होता है वो पूरे महीने अपना शेप चेंज करता रहता है. ओके, मून का शेप जो हमेशा चेंज करता रहता है. The new moon is when we cannot see the moon in the sky. जब आसमान में हमें मून नहीं दिखता है तो क्या होता है, इसका मतलब वो न्यू मून डे है. कौन सा डे, न्यू मून डे, नया मून आने वाला है उस दिन. ओके, नया चांद आने वाला है. अ फुल मून इज राउंड लाइक अ बॉल. जो फुल मून होता है वो कैसा होता है, एकदम गोल होता है. ओके, लाइक अ बॉल. ओके, ऑन सम डेज वी सी अ हाफ मून. कुछ दिन हमें क्या दिखता है, कुछ दिन हमें ऐसे टाइप का हाफ मून दिखता है. ठीक है, ऑन सम डेज द मून इज अ क्रेसेंट शेप. कैसा होता है, क्रेसेंट शेप, ऐसा ये होता है क्रेसेंट शेप. ओके, फुल मून, हाफ मून, क्रेसेंट मून. ओके, ये सब क्या हो गया, फुल मून, हाफ मून, क्रेसेंट मून. ओके, ये सब कौन कौन सा मून हो गया, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मून हो गए. टेक अ लुक एट द इमेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, दिस इज crescent moon. Okay, this is crescent moon. Okay, you can say it as a quarter moon as we have studied in class 1. Okay, this is half moon and this is full moon. Okay, clear. And the day when we cannot see the moon, it is new moon day. Okay, now we will study about stars. Okay, these are stars, lots of stars. Stars twinkle and shine in the night. स्टार्स क्या करते हैं, वो रात में चमकते हैं, टिमटिमाते हैं. स्टार्स लुक टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. स्टार्स क्या होता है, स्टार्स का साइज एक्चुअली में बिग होता है. ठीक है, स्टार्स का साइज कैसा होता है, एक्चुअली में बिग होता है,
बट दे लुक टाइनी, वो बहुत छोटे दिखते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत ज़्यादा ही दूर है, बहुत दूर है, ओके। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी, जहाँ पे स्टार्स के डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, गैलेक्सी में इनफाइनाइट स्टार्स होते हैं, ओके। तो क्या हो गया, वो सब क्या होता है, गैलेक्सी होते हैं। अब एंड जब स्टार को एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स जब एक शेप बना देते हैं, सपोज दे आर मेकिंग द शेप ऑफ समथिंग लाइक दिस, लेट मी मेक इट, कुछ इस तरीके से शेप बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, ओके। जब कोई भी शेप ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टेलेशन, ओके। Let me show you in the image, okay. See here, constellation, okay. This, when the group of stars forms any shape, okay, तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं constellation, okay, क्या कहते हैं, constellation, understood। and a group of stars are known as galaxy, understood। ओके, सी दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ओके। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके गैलेक्सी, गैलेक्सी, ओके। और जब भी कोई शेप ले लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन। व्हेन द ग्रुप ऑफ स्टार्स, द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ शेप, ओके, कोई भी एक शेप ले लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड, then it is called constellation, okay, constellation। तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, constellation कहते हैं, okay। Understood what is galaxy and what is constellation? So now that's all for today. I hope you have understood the chapter, okay। We have tried our best to uh, to show you how our heavenly bodies work, okay। हमारी heavenly bodies काम कैसे करती हैं, वो क्या करती हैं, इन सब के बारे में हमने आपको कोशिश की कि हम आपको बताएं, okay। I hope you understood। If you have any query, please comment us and we will try to resolve the query as best as we can, okay। जितना सही और जितने अच्छे से हो सके हम आपकी query सुलझा देंगे, okay। See you in the next chapter and have a nice day। Thank you for watching।